So today we'll continue with the general exceptions. We'll start with section 80. Section 80 prescribes the following: accident in doing a lawful act. Alright. It provides nothing is an offense which is done by accident or misfortune. So mark the words accident or misfortune. And without any criminal intention, you need to mark the words without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with a proper care and caution. So we get the following ingredients of section 80. That act was done without criminal intention, it was done by lawful manner by lawful means, and it was carried out with proper care and caution. Alright. So an illustration is given. A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing nearby here. If there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. So, very clearly you can understand what is an accident. Let us suppose, I'll give an illustration. Let us suppose a man is driving a truck. Suddenly, his brakes become non-operational and his steering wheel is dislocated from the axis. In that situation, if an accident is caused, then the person who has caused the accident cannot be held responsible for it, even if a person dies due to such an accident. Let us suppose the truck driver hits a scooter driver. In that situation, a scooter driver dies, and the accident occurred only because due to some mechanical defect the brakes failed or the steering wheel came off, and the truck driver was under no situation to come to a conclusion that this sort of thing could have happened or could have reasonably expected or could have even foreseen the possibility of such an event happening. In that situation, it will be termed as an accident. It is an unfortunate thing. So this is covered under section 80. So section 80 protects an act done by an accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in doing a lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution. So the primordial requirement of section 80 is that the act which killed the other person must have been done with proper care and caution. If it is not done with proper care and caution, then in that situation the person would be held liable. Now I'll just take this illustration which the legislature has given under section 80 and reverse it, put it upside down. Imagine if a person is working with an axe and there are children playing around. Alright, they are playing around him. In that situation, he is carrying out his work recklessly, and then the the head of the axe flies off and hits a child, and the child dies in consequence. Can it be said that the person who was working, can he be given benefit of section 80? The answer is no. He cannot be given benefit of section 80, because even though he never had criminal intent, even though the act was an accident, even though whatever he was doing in a lawful manner by lawful means, but he never exercised proper care and caution. There were children around him. He should have been aware that that he needs to be more cautious with his work. If he doesn't become more cautious, an accident might take place and it can result either in death or grievous hurt to a child. And ignoring all these possibilities, if the accused person carries out his act and it is demonstrated before court that a person who committed such unlawful act was carrying out that act without proper care and caution, then in that situation he will not get the benefit of section 80. So know this, even though a person might not have a criminal intent or he is doing a lawful act in a lawful manner by lawful means, but if the act is without proper care and caution, the main essence of this section, then in that situation he will be held liable, and he cannot be heard to say
that I never had any criminal intention to kill the child, will be held liable. Then there is a case of Bhupendra Nath versus State of Gujarat. In this case, it was held by the Supreme Court. The facts of this case was that the accused shot his own colleague at a close range without knowing the identity of his target. And what actually happened was that the accused person loaded a gun, pointed out towards a target and fired at it. Turned out that it was his own colleague. Now this person was taking the defense that I never had a criminal intent. His revolver was his lawful weapon, and he said that he had the license, and he said that I was doing a lawful act in a lawful manner. Court said, but whatever you were doing, you never exercised proper care and caution. You cannot be given the benefit of section 80 in this case. So he was not afforded the benefit of section 80 in this case. His very act of shooting his own colleague at a close range without knowing the identity of his target, the court said it smacked of utter dearth of any care and caution. Dearth is lack of. Then Supreme Court also in the case of KM Nanavati versus State of Maharashtra has also held a point that the amount of care and circumspection taken by the accused must be the one taken by prudent and reasonable man in the circumstances of a particular case. Where the act of the accused is itself criminal in nature, the protection under section 80 is not available. Agar your act is primarily criminal in nature, let us suppose a person is a robber and he is committing robbery, then whatever act he might be doing, the second essential ingredient of section 80 will be entirely omitted in his case, because he is not doing a lawful act in a lawful manner. So if he is not doing a lawful act in a lawful manner, then in that situation also he cannot be given benefit of section 80. So if a robber who commits robbery, he cannot be heard to say that it is by accident that I stole some amount which I thought belonged to someone else, but in reality belonged to a person against whom I never intended to commit a robbery. Secondly, if a man intends to kill one person and by mistake kills another person who he never intends to kill, he cannot be heard to say that the entire thing was an accident. I never intended to kill that person. Instead, I intended to kill another person who escaped my wrath. In that situation also, section 80 will not apply. So the court has very categorically laid down in KM Nanavati that the amount of care that is required is the level of a prudent and reasonable man in the circumstances of the particular case. So it is decided on the case by case basis that what is the level of caution and care that a prudent man ought to exercise in a particular case. Alright. So where the accused is itself, where the act of the accused becomes itself criminal in nature, the protection of section 80 is not available. If the accused pleads exception within the meaning of section 80, then know this, there is a presumption against him, and the burden to rebut that presumption lies on him. What is that presumption? I told you yesterday that this is the general exceptions chapter has to be read with section 105 of the Evidence Act. So the court generally presumes that there is no circumstances which comes within the clause of general exception, which comes within the provision of general exception. And if it doesn't come within the provision of general exceptions, then it is the duty of the accused person, it is the duty of the defense to demonstrate before the court through evidence, either direct or circumstantial, that the particular act fell within a particular provision of general exception of IPC. If he is not able to demonstrate that, then he will be squarely liable. It is not the prosecution's duty to present those facts which fall under general exception. It is the duty of the defense to present those facts before the court which falls within the provision of general exceptions. And generally the court presumes absence of such circumstances. Alright. And that is the presumption of section 105 of the Indian Evidence Act primarily. So you must know that all of the provisions of general exceptions has to be read with section 105 of the Indian Evidence Act. Now I'll take another illustration. Let us suppose there is a truck driver. He believes that a particular truck's brakes might fail at any moment.
rather than taking that truck to a mechanic to have it fixed, or rather than buying a new truck, he decides to take that risk. He decides to incur that risk and proceeds to drive on a highway. Now, what he thought might be possible now becomes an actual reality, and his brakes fail. And due to that, there is a collision between him and a scooter driver. In that situation, can it be said that a truck driver can take the defense of Section 80? Unlike in the first case, in the first illustration that I explained to you, where the truck driver was unaware of any situation where his brakes might fail, in the second situation, he has the awareness. So he is not exercising proper care and caution, which he should have exercised as a reasonable man. In that situation, he will be held liable for his acts. Alright? So you need to make sure that in every case, and case by case basis, you have to judge that what is the level of care and caution that each person needs to exercise. Similarly, you have to also mention that the amount of care and circumspection which has to be taken by the accused must be the one which is taken by a prudent and reasonable man in a circumstances of particular case. If you are aware of all these things, then Section 80 is complete. There is nothing else in Section 80 except by the way of giving you more illustration. I can give you more illustration, but it wouldn't serve the purpose. Let us suppose I give you one more illustration. Imagine a situation where a person is driving his car recklessly on a highway on a rainy day. He crashes into another car which causes death of a person. He is prosecuted for rash and negligent driving. He takes the defense that whatever I did, I never intended it to be so. I never intended to kill that man, or I never intended to harm that man. I was doing a lawful act, that is driving my own car. I had no criminal intention against the deceased. The court will say all of this is fine, but Section 80 also requires proper care and caution which you lacked. In this situation, your reckless driving on a rainy day at a very high speed without caring about the consequences which resulted in death of an innocent man, you will be held liable for your wrongful acts. Even though you are not held liable for murder, you can be held liable for easily rash and negligent driving, and also death by negligence. Alright. So these were the few illustrations. I think they should be sufficient to explain you the scope of Section 80. Okay, depending on the circumstances, the situations might change, and depending on the circumstances, a person might be able to afford the benefit of Section 80 as it's given in the illustration. In the illustrations, keep in mind that it has not been laid down by the legislature that the children were playing nearby. If they were, he ought to have exercised proper care and caution. And if the hatchet if the head of the hatchet flies off and it kills a man, or if it kills a child, and it is shown that the area was crowded and yet the worker who was carrying out his work never exercised proper care and caution, then he'll be held liable. Alright, this question about children is very popular in preliminary examination and in Uttarakhand and Uttar Pradesh mains examination. Alright, that there are children surrounding a particular man and he's working with an X and he doesn't pay attention to his surroundings, and due to that the head of the X flies off and kills a child. In that situation, the worker will be held liable. Now coming to another provision, act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. मतलब कोई ऐसी एक्ट की जा रही है जो हार्म कर सकती है और हार्म करेगी या तो हार्म करेगी, बट इट इज़ डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट. क्रिमिनल इंटेंशन या मेंस रे एब्सेंट है, एंड इट इज़ देयर टू प्रिवेंट अदर हार्म. ऑलराइट, अब सेक्शन 80 और सेक्शन 81 में एक बड़ा प्राइमरी डिफरेंस है. सेक्शन 80 में क्रिमिनल इंटेंशन के लैक के साथ साथ नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट, अगर नॉलेज है तो पर्सन लाइबल हो जाएगा. जैसे जब बच्चे घेर लेते थे हमारे इलस्ट्रेशन के केस में उस वर्कर को, तो इन दैट सिचुएशन में उसके पास एक नॉलेज तो होती है ना. नॉलेज तो आप अज्यूम कर सकते हैं ना कि बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, अगर ये हैचेट फ्लाई ऑफ होकर किसी को लग गया तो कोई मर सकता है, तो ये नॉलेज तो होती है. लेकिन 81 में जो
जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, वो कहती है कि क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट होना चाहिए भले ही नॉलेज प्रेजेंट हो. सो 81 सेज नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म. सो यहाँ पे लेजिस्लेचर कह रहा है कि अगर आपके पास नॉलेज भी है कि आपकी कोई एक्ट हार्म करेगी, even then you are not liable if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. तो देखिए 81 यूज़ किया जा सकता है पर्सन या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए. तो पर्सन और प्रॉपर्टी को मार्क कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं इसका स्कोप सिर्फ पर्सन तक लिमिटेड है. सिमिलरली इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि इसमें अगर नॉलेज है हार्म की, even then a person will be given benefit of 81 unlike the case under section 80. section 80 में criminal intention के साथ साथ नॉलेज भी एब्सेंट होनी चाहिए. 81 में नॉलेज चलेगी कि नॉलेज है, पर क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट होना चाहिए, मेंस rea नहीं होनी चाहिए. और जो भी एक्ट की गई है वो गुड फेथ में करनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी. तो गुड फेथ क्या होता है? ड्यू केयर एंड अटेंशन. I'll give you an illustration after we are done with the reading of the section. Explanation says it is a question of fact. ये मार्क कर लीजिए, प्रीलिम्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है. It is a question of fact in such case whether the harm to be prevented or avoided was of such nature as so imminent as to justify, excuse the risk of doing the act with the knowledge that it is likely to cause harm. तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हिसाब से जज किया जाएगा कि जो सिचुएशन है क्या वो इतनी इमिनेंट थी कि ऐसी एक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए जो ज़रूरी है. अब इसमें दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं. पहला इलस्ट्रेशन को मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ क्या है. कि मान लीजिए एक आदमी शिप अपनी लेके जा रहा है, ऑलराइट, और वो देखता है कि शिप में बहुत सारे पैसेंजर हैं, उसकी शिप में बहुत सारे पैसेंजर आर ऑन बोर्ड, और दूसरी तरफ देखता है एक बोट है. रास्ते में उसके पास एक आइसबर्ग आता है. उसको ये लगता है कि अगर मैंने राइट पाथ लिया तो मैं दूसरी शिप जो दूसरी तरफ से आ रही है उससे टकरा जाऊंगा, 30 लोग मर जाएंगे. ठीक है, उसकी दूसरी शिप के भी और हमारी शिप के भी. उसको लगता है अगर मैं सीधे आइसबर्ग में चला गया तो हो सकता है, हो क्या सकता है, सर्टेनली मेरी शिप डूब जाएगी और सारे के सारे लोग मर जाएंगे जो शिप पे हैं. पर अगर वो लेफ़्ट पाथ लेता है तो उसको दिखता है कि सिर्फ बोट में 2 लोग हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा लोग नहीं हैं. तो 30 लोगों की जान बचाने के लिए अगर वो शिप को लेफ़्ट साइड मोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप बोट से टकरा जाती है और बोट के दोनों लोग मर जाते हैं, then he will be given benefit of section 81. So under section 81 a man is actually caught between a deep ocean and the devil. All right, जिसको हम बहुत फेमस मैगज़ीन में कहते हैं caught between a devil and the deep sea. तो आदमी को ऐसे में क्या करना होता है, उसको देखना होता है कि अगर मुझे ईवल चूज़ करना ही पड़ रहा है तो मैं लेसर ईवल चूज़ करूँगा, मैं ग्रेटर ईवल चूज़ नहीं करूँगा. So here under section 81 there is a duty of a person to choose the lesser evil, only then he can have benefit of section 81. So Sir James Fitzjames Stephens have opined that under circumstances an act which would be otherwise an offence can be excused if the accused is able to show that he did the act to prevent a greater offence or some irreparable evil. But the test is that accused must be confronted with a situation involving possibility of a greater harm, and he has no choice but to commit the lesser offence in order to prevent a greater offence. Here the choice lies between 2 evils and accused has to prefer a lesser evil. The test has been laid down in Southwark London Borough Council versus Williams. Supreme Court of India in Vida Menis versus Yusuf Khan has categorically held that whenever you see the expression harm under the chapter of general exception, then you should know that the word harm is connoting physical hurt or injury. It is connoting physical hurt or damage. That is what the purport of the word harm is. Harm का scope है physical hurt. Alright. So ये ध्यान रखिएगा कि harm को ऐसे इंटरप्रेट किया गया है जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में. तो
सेक्शन 76 से लेके 106 तक आप जो भी पढ़ रहे हैं आईपीसी में, अगर हार्म शब्द को देखते हैं तो आप फिजिकल हार्म या फिजिकल इंजरी कंस्ट्रू करेंगे उसको, ठीक है। अब आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ इसका। अब मान लीजिए कि देयर इज़ अ पर्सन, he molests a particular girl belonging to a different community, all right. For retaliating, 100 men from that community gather with lathi stick in their hands, all right, heavy sticks, and they search for the person who eve teased or molested a particular woman. When they are trying to search for that person, the person rushes to a sarpanch, surrenders before him and says that ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाइए। Eventually all of that 100 men gather around that sarpanch and says, hand over that particular person to us so that we may extract our vengeance, so that we may extract our revenge, और vengeance बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए उसको घेर लेते हैं और सरपंच साहब से कहते हैं कि आप हमको इसको हमारे हवाले कर दीजिए, हम उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट करेंगे जैसा इस सिचुएशन में करना चाहिए। अब सरपंच साहब सोचते हैं कि यार अगर सब ने एक एक लाठी भी मार दी इसको तो ये मर जाएगा स्पॉट पे, ठीक है। दुबला पतला सा आदमी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, और 100 लोग एक एक लाठी अगर कहाँ सर पे ही मार दी किसी ने गलती से भी एक, तो ये बचेगा नहीं। तो सरपंच साहब क्या करते हैं, एक तरीका निकालते हैं। वो कहते हैं कि रुको, वो जूते की माला लाते हैं, उस पर्सन को पहनाते हैं, उसके मुंह पे कालिक पोतते हैं, वही उसी पर्सन पे जिसने लड़की को छेड़ा है। फिर उसको 3-4 झापड़ मारते हैं पब्लिकली, फिर उसको गधे पे बैठाते हैं और गधे पे पूरे गांव में सवारी करवाते हैं। अब उसके बाद सरपंच साहब कहते हैं कि अब आप ऐसा करो कि अब आपको इससे जो बदला लेना है ले लो। सरपंच साहब एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव देखते हैं। तो इतने में जो मॉब आया था वो 100 लोगों का, वो शांत हो जाता है। वो कहता है कि सरपंच साहब जब आपने ही इतना कर दिया है तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको इसके किए की सज़ा मिल गई है, और वो लोग चले जाते हैं। अब भैया जिस पर्सन ने ईव टीज़ किया था ही वॉज़ वेरी एंग्री। ही वॉज है सरपंच साहब, मैं तो आपके पास अपनी जान बचाने के लिए, आपने तो मुझे बेइज्जत कर दिया, आपने तो मुझे पूरे गांव में की भरी गांव में मुझे चांटा मारा, मुझे पूरी हर जगह टहलवाया गधे पे बैठा के, जूते की माला मेरे ऊपर डाल के, मैं तो आपको प्रोसिक्यूट करूँगा। तो जब वो हर्ट और बाकी चीज़ों के लिए प्रोसिक्यूट करेंगे सरपंच साहब को, तो सरपंच साहब कहाँ डिफेंस लेंगे? सरपंच साहब विल टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 81, और वो बोलेंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए की जिससे मैं इसकी जान बचा सकूं। अगर मैं ये सारे काम ना करता तो भीड़ का गुस्सा शांत ना होता, और अगर भीड़ वाले अपने हिसाब से चलते तो अगर वो एक एक लाठी भी इनको मार देते तो ये ख़त्म हो जाते, ये बचते ही नहीं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दिस पर्टिकुलर पर्सन वुड हैव डाइड, एंड इन दैट सिचुएशन I tried to save this particular person. I tried to save himself from his horrific fate which awaited him on that particular day. So that is why I did what I did. मैंने ये सारी चीज़ें इसीलिए किया क्योंकि मैं ये चाहता था कि किसी भी तरीके से भीड़ का गुस्सा शांत हो और इसको वो लोग मारे ना, क्योंकि अगर वो मारते तो ये मर जाता। The court will say that yes, we agree with your defense contention and we will grant you acquittal on this point because you have sufficiently put your case within the 4 parameters of section 81. Even though you had the knowledge that whatever you are doing particularly was an offense, you still chose the lesser evil. Of course, अगर सरपंच ने हमारे लिए स्टेशन में इसको मारा, अक्यूज को, सॉरी दिस पर्सन को जिसने ईव टीज किया था और जिसने बाद में सरपंच को प्रोसिक्यूट किया, तो उसने हर्ट कमिट की, 323 में ऑफेंस है, क्रिमिनल फोर्स किया और डिफेमेशन भी कमिट किया, बहुत सारे ऑफेंस कमिट किए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में
ये ऑफेंस तो ज़रूर है, उसके पास नॉलेज ज़रूर है सरपंच के पास कि मैं जो कर रहा हूँ ये ऑफेंस है, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी वो क्रिमिनल इंटेंट नहीं है जो उन ऑफेंस को कमिट करने के लिए ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो सरपंच है हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने ये सारी एक्ट क्यों कमिट की? इसकी जान बचाने के लिए, उसको मारने के लिए नहीं। तो क्रिमिनल इंटेंशन जो मेंस रिया बहुत ज़रूरी है इन सब सेक्शंस के लिए, वो एब्सेंट है। इवन दो ही हैज़ अ नॉलेज दैट कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे हार्म हो सकता है, बट उसकी जान बचाने के लिए, अगर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के 100 लोग जो थे अगर वो लाठी मार देते तो मर जाता, तो उसकी जान बचाने के लिए उसने ये जो लेसर ईविल चूज़ किया कि मैं इसको थोड़ा थप्पड़ मार दूंगा तो उससे भीड़ का गुस्सा शांत हो जाए, इसके मरने से तो अच्छा ही है। इफ़ दी सरपंच चोज दैट रूट, ही चोज द लेसर ईविल। So in that situation, the sarpanch would be given the benefit of section 81 because he chose the lesser evil rather than the greater evil. All right. अब डॉक्टर्स भी बहुत सारा डिफेंस लेते हैं सेक्शन 80 का कि मान लीजिए कभी कभी ऑपरेशन गलत कर दिया, किसी की डेथ हो गई, या मान लीजिए ऑपरेशन या कुछ दवाइयाँ नेग्लिजेंटली प्रिस्क्राइब कर दी। कभी कभी जो क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस के केस होते हैं उनमें डॉक्टर्स का बहुत प्रोसिक्यूशन होता है, तो वो भी यही डिफेंस लेते हैं कि हमने जो किया वो एक्सीडेंट था। इनफैक्ट वो काफ़ी और डिफेंस लेते हैं, सेक्शन 87 में भी लेते हैं, 88 में भी लेते हैं, 91 में भी लेते हैं, सेवरल डिफेंसेस लेते हैं वो। पर प्राइमरली राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड विद सेक्शन 80 ना। तो 80 के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात बताऊंगा कि अगर डॉक्टर को क्रिमिनली लायबल करना है तो आपको ऐसा कंडक्ट इम्प्यूट करना होगा डॉक्टर पे जो ये दिखा सके कि उसकी नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस इस लेवल की थी कि देयर वाज टोटल डिसरिगार्ड ऑफ फॉर लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ हिज पेशेंट, एंड हिज स्किल एंड कंडक्ट वाज बिलो एवरेज दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डॉक्टर इन दिस कम्युनिटी। तो जो उसका जो कंडक्ट और कॉम्पिटेंस था वो बिलो एवरेज था, जैसा कि एक एवरेज कॉम्पिटेंस होता है उसकी डॉक्टर्स की कम्युनिटी में जो पर्टिकुलर जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं। जैसे डेंटिस्ट और न्यूरो सर्जन का कॉम्पिटेंस लेवल अलग अलग होगा। ऑलराइट, तो आपस में इसको क्रॉस मत करिएगा। डॉक्टर इज़ अ वेरी वाइड टर्म, इसमें भी स्पेशलाइज टर्म्स होते हैं। आपका न्यूरो सर्जन हो गया, ऑर्थोपीडिस्ट हो गया, आपका डेंटिस्ट हो गया, एसेट्रा। तो डॉक्टर को अगर आपको लायबल करना है तो आपको एक बहुत रिगरस टेस्ट से गुजरना होगा, ऑलराइट, जिसको बोलेम्स टेस्ट भी कहते हैं। तो ये तो प्राइमरली टॉपिक है सेक्शन 304A का, जिसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूट होते हैं। अभी मैं बस आपको सेक्शन 80 के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो एक केस है सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे डिफेंस लिया गया था एक्सीडेंट का। इसमें क्या हुआ था कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना था वो नेसल डिफॉर्मिटी के लिए परफॉर्म होना था, ठीक है। और उन्होंने जो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो लगाया उसके मुंह पे, क्या कहते हैं, पेशेंट के मुंह पे, वो प्रॉपर साइज़ का नहीं था। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है वो बेसिकली एक डिवाइस होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, बहुत पतली सी, वो मुंह में लगाई जाती है, जिससे और विंड पाइप में डाली जाती है, जिससे एक पेशेंट आराम से ब्रीथ कर सके। और एंडोट्रैकियल ट्यूब उसके बाद वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है जो ऑक्सीजन देता है लंग्स को। तो इस केस में क्या हो गया, जो प्रॉपर प्रिकॉशन लेने थे वो डॉक्टर ने लिए नहीं। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब था वो प्रॉपर साइज़ का नहीं था, तो उससे क्या हुआ कि जो वूंड से जो ब्लड था वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में चला गया, लंग्स में चला गया। तो ये जो एक्ट थी डॉक्टर की, इसको कोर्ट ने बोला कि अगर हम इसको सच भी मान लें तो ये नेग्लिजेंस तो है, लेकिन इस केस में ये प्रॉपरली टॉर्ट और सिविल लाइबिलिटी का रेल्म है, ना कि ये रेल्म उसका होगा, क्या कहते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी का। तो इस केस में उनको छोड़ दिया गया था, क्रिमिनली लाइबल नहीं किए गए थे पर सिविल लाइबिलिटी में वो लाइबल थे।
क्योंकि कोर्ट्स ने ये जो इतना लीवे डॉक्टर्स को इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगा दी तो कोई भी डॉक्टर कभी ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करेगा ज़िंदगी में. एंड अ डॉक्टर कैन नॉट परफॉर्म अ सर्जरी इफ़ ही बिलीव्स दैट देयर इज़ अ हॉल्टर अराउंड हिज नेक ऑल द टाइम. तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ा रुख इन लोग के लिए नहीं रखा है और बोला है कि सिर्फ हम इनकी नेग्लिजेंस को नहीं पनिश करेंगे, हम इनकी ग्रोस नेग्लिजेंस को पनिश करेंगे. कि मतलब ऐसी नेग्लिजेंस की जो एक एवरेज कॉम्पिटेंस से भी बहुत नीचे जाती है और दूसरा विदाउट एनी रिगार्ड टू द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट. अगर ऐसा कोई काम कर दिया देन यू विल बी लायबल. हम लोग उसमें क्या कहते हैं डील करेंगे सेक्शन 304A में डॉक्टर्स की लाइबिलिटी मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर. इसमें जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन सारे केसेस को खूब डिस्कस करेंगे. लेकिन प्राइमरली सेक्शन 80 के कंटेक्स्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस केस में सेक्शन 80 का डिफेंस लिया गया था. तो कोर्ट ने बोला था यहाँ पे तो प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं है आपके पास, तो टेक्निकली आपको लाइबल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका केस सेक्शन 80 में सक्सीड कर गया है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर केयर और कॉशन चाहिए, वो तो आपने ली नहीं. आपको इसलिए लाइबल नहीं किया जा सकता क्योंकि जो सेक्शन 304A में ग्रोस नेग्लिजेंस चाहिए डॉक्टर्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए वो आपके केस में नहीं है. ऑलराइट, बिकॉज कोर्ट सेड कि व्हेन अ पेशेंट agrees to go for a medical treatment or a surgical operation, every careless act of a medical man cannot be termed as criminal. It can be termed criminal only when the medical man exhibits gross lack of competence or inaction and wanton indifference to his patient's safety, and which is found to have been arisen from gross ignorance or gross negligence. Where a patient's death result merely from the error of judgment or an accident, no criminal liability should be attached to it. Mere inadvertence or some degree of want of adequate care and caution might create a civil liability, but that would not suffice to hold a criminal liability. And this approach of the courts in the matter of fixing criminal liability on doctors in the course of medical treatment given by them to their patient is necessary so that the hazards of medical men in medical profession being exposed to civil liability may not unreasonably extend to criminal liability and expose them to risk of landing themselves into prison for an alleged case of criminal negligence. For every mishap or death during medical treatment, the medical man cannot be proceeded against for punishment. Criminal prosecution of doctors without adequate medical opinion pointing to their guilt would be doing great disservice to the community at large, because if the courts were to impose criminal liability on hospitals and doctors for everything that goes wrong, the doctors would be more worried about their own safety than giving best of treatment to their patients. This would lead to shaking the mutual confidence between the doctor and the patient. Every mishap or misfortune in the hospital or clinic of a doctor is not a gross act of negligence to try him for an offense of culpable negligence. Between the civil and criminal liability of a doctor causing death of his patient, the court has the difficult task of weighing the degree of carelessness and the negligence alleged on the part of the doctor. For conviction of a doctor for an alleged criminal offense, the standard should be of proof of recklessness and deliberate wrongdoing, that is, a higher degree of morally blameworthy conduct. To convict, therefore, a doctor, the prosecution has to come out with a case of a high degree of negligence on the part of the doctor. Mere lack of proper care, precaution, or attention or inadvertence might create civil liability but not a criminal one. तो ऐसे आप समझ रहे होंगे कि जनरली कोर्ट्स हर नेग्लिजेंस में क्रिमिनली लायबल नहीं कर देते, वो ग्रोस नेग्लिजेंस के लिए पनिश करते हैं. तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब सेक्शन 80 के पर्सपेक्टिव में आप डिफेंस लेंगे और सेक्शन 81 के भी पर्सपेक्टिव में आप डिफेंस लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ये सारे जो डिफेंस है ना मिला जुला के लेते हैं. सेक्शन 80 भी डालेंगे उसमें, सेक्शन 81 भी डालेंगे. कह देंगे कि मैंने ये वाला ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि अगर मैं दूसरा ऑपरेशन करता तो उससे एक बड़ी इंजरी हो सकती थी, और अगर वो बड़ी इंजरी हो जाती तो हो सकता था उसकी जान चली जाती. पर जो प्रोसीजर मैंने अपनाया था उसमें रिस्क कम था, पर रिस्क उसमें भी था, इसीलिए मैंने दूसरा प्रोसीजर चुना. पर अगर उसमें पेशेंट की जान चली गई तो उसमें मेरी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए. तो कोर्ट कहता है कि इट इज़ ओके, आपने अपना जजमेंट
एक सर्टेन वे में एक्सरसाइज किया, लेकिन ध्यान रखिए मेयरली बिकॉज आपने अपना एक जजमेंट सर्टेन वे में एक्सरसाइज किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक चार्टर मिल गया लॉलेसनेस का कि आप ग्रोस नेग्लिजेंस भी कर सकते हैं। आपकी नेग्लिजेंस के लिए आप क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे, पर सिविल केस में लायबल ज़रूर होंगे। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर प्रोसिक्यूशन को, डॉक्टर को क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव में लाना है, क्रिमिनल लॉ के रेल में लाना है, उसको क्रिमिनली लायबल करना है, तो ऐसे केस में ग्रोस नेग्लिजेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब ऐसा कंडक्ट जिसमें एकदम रेकलेसनेस दिख रही हो, इसमें डॉक्टर को पेशेंट की लाइफ, सेफ्टी, रिस्क या किसी भी तरीके की चीज़ की परवाह ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक हार्ट पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए हुए अगर उसका सर्जरी की जाएगी तो वो तो शॉक से मर जाएगा। सिमिलरली अगर सेटल्ड मेडिकल नॉर्म्स को इग्नोर करके अगर डॉक्टर एक बहुत ही गलत तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट करे जो मेडिकल नॉर्म्स के ठीक ऑपोजिट में जाता है, तो ऐसे केस में भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो मान लीजिए एक फिजिशियन है और वो सोचता है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक पेशेंट को धतूरा खिला देता हूँ, तो धतूरा इज़ पॉइजनस, और वो सोचता है कि मैंने एक जगह मुझे लगता है कि मेरे गांव में जैसे धतूरा खा के लोग ठीक हो जाते थे, वैसे ही धतूरा खा के हो सकता है मेरा पेशेंट भी ठीक हो जाए। पर इसमें वो मेडिकल साइंस पे रिलाई नहीं कर रहा, वो अपनी विम्स और फैंसीज पे रिलाई कर रहा है। तो ऐसे केस में कोर्ट बोलेगा आपने उसे एक पॉइजनस सब्सटेंस दे दिया इस होप में कि शायद वो ठीक हो जाए, और इसकी तो कोई मेडिकल बैकिंग भी नहीं है, तो ये ग्रोस नेग्लिजेंस है, पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरली हम इसको डील करेंगे आगे अंडर सेक्शन 304A। अभी आप इसको सिर्फ उसके कंटेक्स्ट में समझिए, सेक्शन 80 या 81 में, कि अगर 81 में डॉक्टर कहता है कि मैंने ये ऑपरेशन इस तरीके से किया क्योंकि मैं बड़ी हानि को रोकना चाहता था, इसमें छोटी हानि करना चाहता था जिससे पेशेंट की जान बच सके, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, राइट, जनरली। और अगर वो सेक्शन 80 में डिफेंस लेना चाहता है तो उसको ये भी दिखाना होगा कि उसने जो किया वो प्रॉपर केयर और कॉशन था, वो लॉफुल एक्ट थी, लॉफुल मैनर में थी, और उसने जो भी काम किया विदाउट क्रिमिनल इंटेंट या विदाउट नॉलेज किया या विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एनी क्रिमिनल इंटेंट किया। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक पेशेंट अपना इलाज करा रहा है, उसने कभी डॉक्टर को बताया नहीं डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के दौरान कि मेरी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि अगर मेरा जैसे अ पर्सन इज़ हीमोफीलिया, कि अगर उस पर कट किया तो उसका खून बहता है, उसमें क्लॉटिंग कम होती है, खून बहना रुकेगा नहीं, तो ऐसा व्यक्ति मर सकता है एक सिंपल कट से भी, और उसने डॉक्टर को ये बताया नहीं। डॉक्टर ने उसकी बात मानते हुए कोई सर्जरी ऑपरेट की, डॉक्टर को नहीं पता वो हीमोफीलिया के, ना उसने बताया ना कोई टेस्ट करवाए। इनफैक्ट अगर टेस्ट करवाने को डॉक्टर ने बोला तो उसने जानबूझ के रिपोर्ट्स ऑल्टर करवा दी कि जिससे डॉक्टर कहीं मना ना कर दे ऑपरेशन करने से। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो हीमोफीलियाक निकला, उसका ब्लड बह गया और वो ब्लड लॉस की वजह से मर गया। तो ऐसे केस में डॉक्टर जो है ना एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन। अब वो फैक्ट्स पे पता चलेगा कि क्या उसका केस 80 में फॉल करता है, 81 में फॉल करता है, या वो किस सेक्शन में फॉल करता है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार इस केस में तो डेथ होनी नहीं चाहिए, तो डेथ क्यों हो गई। और फिर अगर डेथ हो जाती है तो वो दिखाएगा कि यार पेशेंट ने मुझसे सारी डिटेल्स छुपाई थी, तो ये दिस कैन बी टर्म्ड एज ए केस ऑफ एक्सीडेंट, और दिस कैन बी क्या कहते हैं टर्म कि इट इज़ अ मिसफॉर्च्यून एज वेल। ठीक है, सिमिलरली 81 में फॉल होने के लिए अगर डॉक्टर कहता है कि मैं एक दूसरा ऑपरेशन प्रोसीजर करूँगा, और वो इसलिए क्योंकि उसमें जान बचने का चांसेस ज़्यादा है, तो वो अगर ऑपरेशन करता है तो उसने यही तो बोला है ना कि जान बचने का चांस ज़्यादा है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि 100% सर्टेनिटी है जान बच जाएगी। तो ऐसे केस में इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि इफ़ अ पेशेंट डाइज then in that scenario it is up to the doctor who will be the accused to show to the court that whatever he was doing to prevent a greater evil। तो अगर पेशेंट को मान लीजिए कैंसर है और उसे कोई एक बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन बताता है जो सोचता है कि भाई इससे जान बच जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कैंसर से तो पेशेंट ऑलरेडी ही मर जाएगा और बहुत जल्दी उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं, तो एक ऑपरेशन प्रोसीजर करता है जिसमें उसको लगता है लाइफ बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर उस ऑपरेशन के दौरान पेशेंट सर्वाइव नहीं करता, पेशेंट मर जाता है।
तो डॉक्टर ये बिल्कुल आराम से दिखा सकता है कि उसका केस 81 में फॉल करता है, क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, वो तो उसकी जान बचाना चाहता था। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हिसाब से ही देखा जाएगा। सिमिलरली 81 में एक प्रॉपर्टी को लेके भी इलस्ट्रेशन है कि जहाँ पे एक बहुत कॉन्फ्लेग्रेशन होता है, मतलब बहुत एक आग लग गई है जो बहुत ही वाइड स्प्रेड एरिया में, मान लीजिए सोसाइटी में आग लग गई है, एक आदमी को कोई तरीका नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को हटाने के लिए एक घर को तोड़ देता है, क्योंकि आग जिस डायरेक्शन से आ रही होती है वो उस घर से ही गुजर के जाएगी, तो उस घर को तोड़ देता है जिससे एक आग को एक लाइन ना मिल पाए फैलने के लिए, तो उसकी वजह से आग बुझ जाती है। अब एंड में जिसका घर उसने तोड़वाया आइदर ड्यू टू द वे ऑफ बुलडोज़र या किसी और मेथड से, फिर वो कहता है कि भाई आपने मेरा घर तोड़ दिया, मैं आपको लायबल करूँगा मिसचीफ के लिए और एसेट्रा, प्रोसिक्यूट कर देते हैं उन्हें क्रिमिनली लायबल। तो ऐसा आदमी जब कोर्ट में जाके ये दिखाएगा कि मैंने ये जो भी किया, मैंने कॉन्फ्लेग्रेशन को रोकने के लिए किया, ये जो आगजनी हो रही थी उसको रोकने के लिए किया, अगर मैं ना करता तो हर जगह पूरी सोसाइटी में आग लग जाती और बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता। तो ऐसे में अगर वो कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर देता है तो सेक्शन 81 का बेनिफिट मिल जाएगा। याद रखिएगा 81 इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू पर्सन, इट इज़ ऑल्सो कन्फाइंड टू इट इज़ ऑल्सो इट विद इन इट्स एम्बिट इट कवर्स प्रॉपर्टी एज वेल। ऑलराइट, अब देखिए कब कब बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। धनिया दाजी वर्सेस एम्परर का केस है, 1868 का केस है, इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। अक्यूज जो था वो टॉडी टैपर था। ऑलराइट, द अक्यूज्ड वाज अ टॉडी टैपर। ही ऑब्जर्व्ड, टॉडी अगर आपको नहीं पता है तो एक तरीके का लिकर होता है जो बनता है, ठीक है, वो सुबह सुबह वो उसकी बूंद से बनाया जाता है। इट इज़ अ वेरी फेमस लिकर इन साउथ एंड इवन इन योर पूर्वांचल साइड ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्ट्स में उसे ताड़ी कहते हैं। तो ही वॉज अ टॉडी टैपर। ही ऑब्जर्व दैट हिज टॉडी ब्रू स्टोलन रेगुलरली फ्रॉम द ट्रीज। उनकी ताड़ी चुराई जा रही थी, शराब चुराई जा रही थी। सिंप्लिसिटी के लिए मैं शराब कह देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये एक्चुअली में थी टॉडी। इट इज़ एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, एक तरीके से देसी शराब ही मान लीजिए। तो इनकी जब शराब रेगुलरली, ताड़ी जब रेगुलरली चुराई जा रही थी तो ही वॉज वेरी एंग्री। व्हाट ही डिड, ही पॉइजनड द ताड़ी। एक ताड़ी उसने पॉइजन करवा दी कि अब ये अगर जो भी चोर है जो मेरी शराब चुरा रहा है, अगर ये चुराएगा तो वो जहर, तो वो पॉइजनड हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन जब थीफ ने चुराया एंड ही वॉज पॉइजनड, देन दिस पर्सन वॉज प्रोसिक्यूटेड बिकॉज दैट पर्सन डाइड। क्योंकि जितने लोगों ने, कुछ लोग इंजर हुए थे क्योंकि एक थीफ नहीं था, थीफ जाके शेयर करता था, तो कुछ लोग ने जो पिया तो कई इंजर्ड हो गए बिकॉज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, और एक उनमें से मर गया। तो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड। उन्होंने प्ली लिया सेक्शन 81 का कि मेरा मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो थीफ को पकड़ना चाहता था, मेरा इन लोगों को जिन लोगों ने पी ली गलती से उनको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो प्राइवी काउंसिल ने ये कंटेंशन नहीं माना था। प्राइवी काउंसिल ने कह दिया कि नेसेसिटी का डिफेंस लेने के लिए आपके पास रीजनेबल ग्राउंड और सेंस ऑफ इमिनेंस होना चाहिए, और जो आपने एक्ट की है ना, मिक्सिंग द पॉइजन, ये मिक्सिंग द पॉइजन इन योर टॉडी ब्रू, ये आपने इंटेंशनली की है और आपको नॉलेज भी थी कि ये ग्रेव डेंजर करेगी लोगों के लिए। भाई अगर आप किसी चीज़ में जहर मिला रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई उसको पी के मर भी सकता है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, यू हैड अ क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन हाँ उसे मर्डर की सज़ा नहीं दी थी। ही वॉज पनिश्ड अंडर सेक्शन 328। तो कोर्ट, लेकिन लायबल ये फिर भी हुए थे। ही वॉज पनिश्ड अंडर सेक्शन 328 ऑफ द IPC। नेक्स्ट इन लाइन एक केस है गोपाल नायडू का, गोपाल नायडू वर्सेस स्टेट। इसमें अक्यूज्ड बहुत अमीर व्यक्ति था। रात को शराब के नशे में वो तोड़ फोड़ करने लगे, पब्लिक न्यूसेंस करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और ऐसी एक्ट्स करने लगे जिससे पब्लिक को खतरा हो सकता था। विलेज मैजिस्ट्रेट को ये बात पता लगी। विलेज मैजिस्ट्रेट स्पॉट पे आया, उसने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया और एक केस कर दिया। बाद में अक्यूज जो हैं उन्होंने पलट के विलेज मैजिस्ट्रेट पे केस कर दिया। विलेज मैजिस्ट्रेट ने बोला कि मैं जो कर रहा था
मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ की मैंने पब्लिक को बचाने के लिए यूज़ की। ये न्यूसेंस कर रहे थे भरी रोड पे। तो ऐसे केस में कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि विलेज मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड पोज्ड ग्रेव डेंजर टू द पब्लिक। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर कुछ राइटर्स हैं बाहर, ठीक है, और वो कोई राइट्स कमिट कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है उन पर, ऑलराइट, और इतना फोर्सफुल लाठी चार्ज करती है कि कुछ लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ लोग का सर फट जाता है और कुछ लोग ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं। बाद में उन पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट किया जाता है। सो द पुलिस मैन कैन ऑलवेज टेक अ डिफेंस अंडर सेक्शन 81। वो ये बोल सकता है कि मैंने ये जो एक्ट की मैंने राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए की, क्योंकि अगर ये लोग राइट प्रिवेंट करते तो इनोसेंट लोग मारे जाते। ये राइट प्रोवोक हो रहा था एंड द मॉब वाज एक्टिंग इन एन अनरूली मैनर। सो अगर मैंने जो भी एक्ट की, अब भले ही अपने डिसीजन से, और मुझे पता था इससे हार्म होगा इन लोगों को, इनको चोट लगेगी, इनको बहुत तेज चोट लगेगी और इनमें से लोग मर भी सकते हैं, इवन देन आई डिड सो टू प्रोटेक्ट सो मैनी इनोसेंट लाइव्स एट द कॉस्ट ऑफ दीज अनरूली मॉबर्स। So in that situation, he can also get a benefit of section 81. ये फैक्ट्स के केसेस पे जज होता है, कोई कट एंड राइट रूल नहीं। जो मैंने जो इलस्ट्रेशन दिया इसमें ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने मैलिशियसली किसी के साथ ऐसा कर दिया जो कुछ भी नहीं कर रहा है, आदमी लाइब्रेरी से बाहर निकल गया, पुलिस ने उसका सर फोड़ दिया और बोल दिया कि नहीं ये राइटर था, ऐसे नहीं चलेगा। ही विल नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 81, क्योंकि रिस्क ऑफ इमिनेंस कहाँ दिख रहा है? इमिनेंस कहाँ थी ऐसी फोर्स एक्सरसाइज करने के लिए? कहीं पे भी नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, एक और एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है सेक्शन 81 का, वो है इमिनेंस। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे ऐसा कृत्य करना जो हार्मफुल तो है पर बिना क्रिमिनल इंटेंट के किया जा रहा है वो ज़रूरी हो। तो जैसे कि मॉब वाली बात हुई, पुलिस मॉब को डिस्पर्स करने के लिए देखता है कि अगर मॉब मान लीजिए बगल में गर्ल्स हॉस्टल है और बहुत सेंसिटिव एरिया है और मॉब वहीं पे प्रोसीड कर रहा है, आगजनी करेगा, पता नहीं क्या क्या, दे कैन डू वेरी डिप्रेव्ड एक्ट्स देयर। तो अगर वो ऐसी हरकतें करने वाले हैं तो पुलिस उनको इंटरसेप्ट करती है, उनको रोकती है, मॉब तब भी वायलेंट रहता है, लाठी चार्ज करती है या गन फायर करती है, उसके चक्कर में लोग मर जाते हैं। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? जब वो अगर उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता है तो वो ऑलवेज दे कैन टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 81, और वो कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा ना करते तो इनोसेंट लाइफ डेंजर में आ जाती। गर्ल्स हॉस्टल था, देयर वाज वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, उन सबको नुकसान पहुंचता, वो उनको मार देते, दे वुड हैव कमिटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस देयर, बहुत कुछ हो सकता था। ऑल वी डिड सो इज़ टू हमने जितने भी काम किए वी डिड सो टू डिस्पर्स द क्राउड, जिससे कि हम एक ग्रेटर ईविल प्रिवेंट कर सकें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक लेसर ईविल प्रेफर किया। ऑलराइट, तो ये उसका एक इलस्ट्रेशन था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब एक इंटरनेशनल सिनेरियो आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडिया के बारे में जानिए अच्छा है, लेकिन क्लास आपकी कैसे बनती है अपने दोस्तों के बीच में या एकेडमिशियंस के बीच में या कोर्ट के बीच में, व्हेन यू ऑल्सो नो अबाउट द इंटरनेशनल पोजीशन। तो एक आपको ऑस्ट्रेलियन केस देता हूँ जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या सिचुएशन होनी चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के लिए। सेक्शन 81 को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ये लिख लीजिएगा सेक्शन 81 पे, कभी कभी ऐसे ही सवाल आ जाता है, वेयर इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इनकॉर्पोरेटेड, लिख दीजिएगा सेक्शन 81। तो इन द केस ऑफ आर वर्सेस लॉगमैन, इट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन केस। ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और बोला था कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। जो पहला है कि लॉ रिकॉग्नाइजेस डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। पहला, लॉ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि एक्ट जो की गई है इट मस्ट हैव बीन डन ओनली टू अवॉइड सर्टेन कॉन्सिक्वेंस विच वुड हैव इन्फ्लिक्टेड इररिपेरेबल ईविल अपॉन द अक्यूज्ड or upon whom he was bound to protect. Secondly, the accused must honestly believe on reasonable grounds that he was placed in a situation of imminent peril. Imminence होना चाहिए यहाँ पे भी सेंस, ऑस्ट्रेलिया में भी। The accused must honestly believe on reasonable grounds that he was placed in a situation of imminent peril. Acts done
to avoid peril must not be out of proportion to the peril avoided. The harm to be justified must have been committed under pressure of either physical forces or exerted by some human agency so that an urgent situation of imminent peril has been created. Next is, accused must have acted with the intention of avoiding a greater harm और so as to made possible the preservation of least and equal value. मतलब क्या, या तो ग्रेटर होना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए या कम मिनिमम इक्वल हार्म को रोकने के लिए उसे कोई हार्म कमिट करना चाहिए, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में. नेक्स्ट, विद द ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर वाज open to the accused no other alternative other than the one adopted by him to avoid greater harm or to conserve the value. तो उसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं ओपन होना चाहिए अदर देन द एक्ट दैट ही कमिटेड. अगर वो भाग सकता है, उसके बाद भी भागा नहीं, उसने एक वायलेंट अनलॉफुल एक्ट कमिट करती तो वो लायबल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में. The doctrine so enunciated must be carefully circumscribed, else necessity would open the door to many an excuse. Accused must honestly believe on reasonable grounds that he was placed in a situation of imminent peril. The test is, would a reasonable man in the position of accused would have considered that he had any other alternative to doing what he did to avoid peril? Next is, self-defense is not capable of being brought within the general description of defense of necessity. It is analogous to it, मतलब मिलता जुलता है, पर ये right of private defense में नहीं होता, ये एकदम अलग होता है. In comparing the kind of necessity which requires self-defense with the necessity which requires escape from prison, there is of course an essential difference in which the former, the accused, will always or almost always attack the person threatening him, whereas in the case where a prisoner feels necessity as a justification for escaping, the criminal act which he commits is not directed to a person making the threat. तो इस केस में क्या हुआ था ना, एक व्यक्ति जो था अपने जो प्रिजन से भाग गया था बिकॉज उसने कहा कि आई हैड एन एप्रीहेंशन, देयर वाज अ डेंजर टू माई लाइफ, तो वो प्रिजन तोड़ के भाग गया था. तो इसमें उसने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस लिया था. तो ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गाइडलाइंस लाई थी. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. सिमिलरली यूनाइटेड, वैसे हैं बहुत सारे, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स में भी ऐसा ही हुआ था. वहाँ पे कोई भागा नहीं था, वहाँ पे भी एक पॉइंट ले डाउन हुआ था यूएसए में इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स, in which it was held necessity does not justify indiscriminate throwing of passengers overboard to save a sinking boat. It was further held in this case where a ship is in danger of sinking but all sustenance is exhausted and the sacrifice of one person is necessary to appease the danger of others. The selection is by a lot. This mode is resorted to as the fairest mode and in some sort as an appeal to God for selection of victim. The judge further felt that if lots are drawn and the victim resists force, the person may even coerce submission. तो बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये नहीं है कि एक डूबती हुई नाव को बचाने के लिए आप उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको समुद्र में फेंक दें कि जाओ तुम डूब जाओ, मुझे नाव बचानी. ये मतलब नहीं है. आपको एक ग्रेटर ईवल को रोकने के लिए लेसर ईवल कमिट करना है, दैट इज़ द थिंग. और ये भी नहीं कि किसी की भूख मिटाने के लिए आपने पता चला लोगों को स्लॉटर कर दिया और उसे खिला दिया. अक्सर सीज़ में या अगर लोग आइलैंड पे स्ट्रैंड हो जाते हैं ना, तो दे इंडल्ज इनटू कैनिबलिज्म. अभी मैं केस बताऊंगा उसको लेके, डडली एंड स्टीफनसन का. बट कैनिबलिज्म की भी हरकतें देखी गई हैं और ये सारी चीज़ें भी देखा गया है. तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी लॉ यही है कि आपको एक नोबिलिटी दिखानी है, आपको ग्रेटर ईवल को प्रिवेंट करना है. आपको लेसर ईवल को प्रिवेंट नहीं करना होता कि आपको बचाना है, कि आपको बचाना बोट है और उस बोट को बचाने के चक्कर में आपने जितने भी पैसेंजर हैं उनको बाहर फेंक दिया समुद्र में, वो डूब के मर गए. ये रूट नहीं है. द रूट इज़ दैट यू हैव टू prevent a greater evil, all right, and then commit a lesser evil. To prevent a lesser evil you cannot commit a greater evil. That is the only point.
So there is also a case that is from UK, London Borough of Southwark versus Williams. In this case, the defendants, two homeless families, were unable to obtain housing. With the help of Squatters Association, they made an orderly entry into a house owned by Borough Council. The council obtained an order for possession. The defendants relied on डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कि हम ये घर इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम इसके बाहर होमलेस हो जाएंगे. तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि दो होमलेस फैमिलीज़ को घर नहीं मिल रहा था, तो वो स्क्वाटर एसोसिएशन के पास गए. स्क्वाटर एसोसिएशन ने उनके घर अलॉट किया, वो घर में गए, पेमेंट देने से मना कर दिया, फिर कहा कि हम नहीं निकलेंगे अब यहाँ से. तो काउंसिल कोर्ट गया और कोर्ट से उसने ऑर्डर ऑफ पोजेशन ले आया. तो डिफेंडेंट्स जो थे, जो होमलेस पर्सन थे, उन्होंने डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पे रिलाई किया. कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सो एनंसिएटेड मस्ट हाउएवर बी केयरफुली सर्कमस्क्राइब्ड as necessity would open doors to many an excuse. It was held for very this reason that it is not admitted in the case of Dudley and Stephens. They were held guilty of murder. Similarly, when a man who is starving enters a house and takes food in order to keep himself alive, law does not admit the defense of necessity. It holds them guilty of larceny, which जो हमारे यहाँ theft कहा जाता है. सिमिलरली ये जो दो पर्सन थे, इनका भी जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी था, कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया. कोर्ट नेवर एग्रीड विद दैट. अब मैं आता हूँ सबसे क्लासिक केस पे, क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस. 1884 में, आई थिंक 1886 में डिसाइड हुआ था. 1884 की ये घटना है. रिस्पोंडेंट्स जो थे, एक ब्रूक्स था. ब्रूक्स की एज थी 17 से 18 साल के बीच में. वो क्रू का पार्ट था इंग्लिश वेसल का. अब वो हाई सीज पे सेल कर रहे थे. अब डडली, स्टीफेंस और ब्रूक एक ही नाव में फंस गए थे. अब उनको ना पानी मिला ना खाना मिला 18 दिन के लिए. 18 दिन भूखे प्यासे रहे वो लोग. और 18वें दिन को उनमें से, डडली और स्टीफेंस में से एक बोला कि ऐसा करते हैं, ब्रूक्स को मार देते हैं, क्योंकि ब्रूक्स की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है. ब्रूक्स एकदम दुबला हो चुका था, वो लग रहा था कि वो मरने वाला है. तो डडली और स्टीफेंस एक प्लान बनाते हैं कि हम ब्रूक को मार देते हैं और फिर ब्रूक के खून से हम लोग अपनी प्यास बुझाएंगे और ब्रूक के फ्लैश से हम लोग अपनी भूख मिटाएंगे. कैनिबलिज्म उनके सर पे आ गया था. स्टीफेंस मान गया डडली की बात. डडली ने जो था वो सबसे पहले ये सजेस्ट किया था. तो डडली और स्टीफेंस ने साथ में क्या किया, उस लड़के को मार दिया और उसके गर्दन पे एक नाइफ लगाया और दे स्लिट हिज थ्रोट, मार दिया, उसका खून पिया, उसका फ्लैश खाया. एंड देन हुआ क्या कि लेटर एक शिप आ गई. और शिप आ गई तो उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो ये घटना हुआ था, आदमी कैनिबलिज्म कर रहे हैं. तो शिप ने उनको बचाया तो, पर बाद में ये लोग प्रोसिक्यूट भी किए गए. आई एम सॉरी, आई मस्ट करेक्ट वन थिंग. ब्रूक्स वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. जिस लड़के को मारा गया था उस लड़के का नाम पीटर था. ब्रूक्स वॉज वन ऑफ देम. ब्रूक्स वॉज ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड. ब्रूक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एक्ट में. ब्रूक्स से सबसे पहले प्लान शेयर किया गया था कि पीटर को मार देते हैं, उस लड़के को मार देते हैं, उसका फ्लैश खाते हैं, उसका खून पीते हैं. बट जो डडली और स्टीफेंस एग्री कर गए थे, ब्रूक्स जो था उसने मना कर दिया था. ब्रूक्स सेड दैट आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन सच एन एक्ट. तो डडली और स्टीफेंस ने उनको मारा, पीटर को, और उसके खून से प्यास बुझाई और फ्लैश खाया. बाद में शिप आई, शिप उन्हें उठा के ले गई, उनको बचाया, खाना वाना खिलाया, बट दे वर एक्चुअली प्रोसिक्यूटेड. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इफ़ मैन हैड नॉट फेड अपॉन द बॉय. इनका डिफेंस पहले सुन लीजिए कि इन लोगों ने डिफेंस क्या लिया था प्राइमरली. आई विल टेल यू कोर्ट ने क्या कहा, वो तो अलग बात है. पहले ये बताता हूँ इन्होंने क्या डिफेंस लिया था. इन्होंने बोला कि अगर हमने इसको खाया ना होता, उस लड़के को, तो हम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव ना करते, हम लोग मर जाते. बट
और हम लोग 4 दिन के अंदर ही फैमिन से मर सकते थे, पर और बॉय जो था वो ऑलरेडी बहुत वीक कंडीशन में था, वो मोस्ट प्रोबेबली मरने ही वाला था। और उस वक्त के टाइम पे वहाँ पे कोई बोट नहीं थी, कोई शिप नहीं थी, या कोई प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिलीफ भी नहीं था। तो उस सर्कमस्टेंसेस में उनको ये सही लगा कि वो उसको मार दें और उसके फ्लैश और ब्लड से अपनी भूख और प्यास मिटाएं। सो दे वर एक्चुअली कंज्यूमिंग दैट बॉय for the purpose of satisfying their own starvation. And they further said the contention that they took was that we were acting under a doctrine of necessity. हम लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। And there was also no appreciable chance of saving the life of the boy or saving the life of everyone else except by killing someone for others to eat. Assuming any necessity to kill anybody, there was no greater necessity for killing the boy than any of the 3 other of them. तो वहाँ पे कह रहे थे कि अगर हम मान लीजिए लड़के को ना मारते तो कोई और मरता, मरना तो था ही सबको अगर ये रिकोर्स ना लेते। तो हमने जिस परसेप्शन में काम किया, वी वर एक्टिंग अंडर अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में हम काम कर रहे थे। वी वर नॉट, वी नेवर इंटेंडेड टू किल द बॉय। हमने एक की जान ली जिससे 3 की जान बच सके। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट बोलता है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेड, क्वींस बेंच सेड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउ फार द कन्वर्जेशन ऑफ अ मैन्स ओन लाइफ इज इन ऑल केसेस and under all circumstances an absolute, unqualified and paramount duty. We are dealing with a case of private homicide, not once imposed upon men in serving of their sovereign and the defense of their country. It is admitted that deliberate killing of this unoffending and unresisting boy was clearly a murder unless the killing can be justified by some well recognized excuse admitted by the law. It is further admitted that there was in this case no such excuse unless the killing was justified by necessity. But the temptation to act which existed here was not just what the law has ever called necessity. To preserve one's life is generally speaking a duty, but it may be the plainest and the highest duty to sacrifice it. It is not correct to say that there is an absolute or unqualified necessity to preserve one's life. It is not needful to point out the awful danger of admitting the principle which has been contended for. Who is to be judge of this sort of necessity? By what measure is the comparative values of lives to be measured? Is it to be strength or intellect or what? It is plain that the principle leaves him who is to profit by it to determine the necessity which will justify him deliberately taking another's life to save his own. In this case, the weakest, the youngest, the most unresisting was chosen. Was it more necessary to kill him than one of the grown men? The answer must be no. It is not to suggest that in this particular case the deeds were devilish. But it is quite plain that such a principle, once admitted, might be made a legal cloak for unbridled passion and atrocious crime. Hence, the case is clearly a case of willful murder of a hapless boy and does not suppose the doctrine of necessity. अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कोर्ट कहना क्या चाह रहा है। जिनको ऑलरेडी ये समझ में आ गया, दैट इज़ वेरी गुड, बट लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू एंड ट्रांसलेट इट फॉर यू। कोर्ट कह रहा है कि देखिए, कई सिचुएशन होती हैं लाइफ में जहाँ पे आदमी की ड्यूटी जीना नहीं होता, मरना होता है। जब एक सोल्जर वॉर पे जाता है तो वो जीने नहीं जाता, वहाँ पे उसकी हाईएस्ट ड्यूटी होती है उसको सैक्रिफाइस करना। कोर्ट कहता है कि अगर वो लड़का इतना ही वीक था जितना आप बता रहे हैं, वो मर ही जाता, तो आप उसको अपना खून पिलाते। यू शुड हैव कट योर ओन हैंड एंड सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट। आप अपना फ्लैश निकाल के उसको खिलाते, आप अपनी जान ले लेते। किसी और की कमज़ोर की जान लेना इज़ लाइक वॉकिंग इन टू द लॉ ऑफ द जंगल। आप जंगल के लॉ में जा रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ द जंगल वेयर द माइट इज़ राइट, नॉट राइट इज़ माइट। जहाँ पे माइट इज़ राइट, जहाँ पे मतलब आपकी स्ट्रेंथ अलोन डिसाइड करती है कौन सही है कौन गलत, ये तो क्या कहते हैं, सिविलाइज लॉ की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। और कोर्ट ने फर्दर ये भी कहा कि अगर हम ये ही प्ली मान लेंगे, इस केस को अगर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी माना, तो इसका इफेक्ट ये होगा
कि ये एक लीगल क्लोक बन जाएगा, एक तरीके से प्रोटेक्शन बन जाएगा एट्रोशियस क्राइम्स के लिए। हर आदमी यही करेगा और कहेगा कि मैंने तो नेसेसिटी में काम किया, तो इनको मर्डर के लिए दोषी पाया गया था। हाउएवर इसको फिट केस ऑफ क्लेमेंसी जुरिडिक्शन के लिए भी माना गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिकमेंड भी किया था, और जो क्वीन थी, जो क्राउन था, क्राउन ने इस सेंटेंस को कम्यूट भी कर दिया था 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट के लिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रेजेंट केस में से फिट केस फॉर कम्यूटेशन माना था, क्लेमेंसी के लिए फिट केस माना था, पर क्योंकि जजेस थोड़ी ना मर्सी दिखा सकते हैं, जजेस ने बोला इसमें कन्विक्शन तो होना है, क्योंकि आपने एक हेल्पलेस और एक कमज़ोर बच्चे की जान ली है टू सेटिस्फाई योर ओन स्टारवेशन, दैट हैज़ टू बी कंडेम्ड। इट कैन नॉट बी द बेडरॉक ऑफ अ लीगल प्रिंसिपल इन एवरी सिविलाइज सोसाइटी। इस तरीके से नहीं एक्सरसाइज हो सकती डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। हैप्लेस का मतलब होता है जो अनफॉर्चुनेट हो, HAPLESS। हेल्पलेस का मतलब होता है जिसके पास कोई मदद करने वाला ना हो या जिसकी कोई मदद ना कर रहा हो। तो जब भी यहाँ पे आप हैप्लेस सुने ना, समटाइम्स द कोर्ट इज़ यूजिंग द वर्ड हैप्लेस, दैट इज़ नॉट अ स्पेलिंग एरर, दैट इज़ एक्चुअली द वर्ड। ऑलराइट, हैप्लेस मीन्स अनफॉर्चुनेट। तो कोर्ट ने ये बोला कि दिस इज़ अ केस ऑफ विलफुल मर्डर ऑफ अ हैप्लेस बॉय एंड इट डज नॉट सपोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो ये भी चीज़ जान लीजिए कि इन सर्टेन सिचुएशंस सेविंग अ लाइफ ड्यूटी होती है रादर देन टेकिंग अ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ऑलराइट, सो इट इज़ द हाइएस्ट ड्यूटी ऑफ पर्सन्स एंड इट इज़ द हाइएस्ट नोबल ड्यूटी ऑफ ऑल सिविलाइज्ड मैन एंड वुमेन दैट दे स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट लाइव्स ऑफ अनदर। देखिए, अब जितने भी इलस्ट्रेशन आपने देखे 81 में, जहाँ पे एक आदमी एक कैप्टन ऑफ द शिप को मोड़ लेता है जिसमें 30 पैसेंजर हैं, 2 की जान को हानि पहुँचती है पर 30 के लोग बच जाते हैं, वो एक नोबल इंटेंशन से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोगों की जान बचानी है। यहाँ पे जो डडली और स्टीफेंस ने जो एक्शन लिया मर्डर करने का, प्राइमरली क्योंकि ब्रूक्स ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं था ओरिजिनली। हाँ, ये अलग बात है कि उसने मर्डर में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ही डिड कंज्यूम हिज फ्लैश एंड ब्लड। पीटर का फ्लैश एंड ब्लड उसने कंज्यूम किया था, लेकिन उसने मारा नहीं उसको। तो मारने की जिम्मेदारी तो डडली और स्टीफेंस पे गई थी, नॉट ब्रूक्स पे नहीं गई थी। तो कोर्ट ने प्राइमरली यही उसमें कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में काम करता है, अपने सेल्फिश एंड के लिए वो काम कर रहा है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इतना स्ट्रेच नहीं किया जा सकता कि आपको यहाँ तक स्ट्रेच कर दें कि आप किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर हमने अगर कोर्ट ने कोई और कंस्ट्रक्शन किया होता तो इससे क्या हो सकता था। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इतनी खिंच सकती तो इसका मतलब ये होता कि एक आदमी अगर वो भूखा है और वो सोचता है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा मर जाएगा, तो किसी के घर पे घुसता है रॉबरी करने के लिए, सामान चुराने के लिए, और अगर लोग रेजिस्ट करते हैं और वो उसको मार देता है और बाद में सामान लूट के ले जाता है, तो फिर बाद में वो ये भी तो कह सकता है मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं मर जाता। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ऑलराइट, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ क्लोक फॉर कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, तभी कोर्ट ने बोला इन सर्टेन सिचुएशन देयर इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस द लाइफ देन टू प्रिजर्व इट। एक एकेडमिक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ जिसमें स्टीफेंस और आर्चबोल्ड के बीच में थोड़ा वो है, डिसएग्रीमेंट है। दोनों बहुत महान ज्यूरिस्ट हैं। तो इलस्ट्रेशन ये है, ए एंड बी स्विमिंग इन द सी आफ्टर शिपव्रेक, मतलब शिप डूब गई है और वो स्विम कर रहे हैं सी में। ए को प्लैंक मिल जाता है और वो प्लैंक ऐसा नहीं है कि ए और बी दोनों को सपोर्ट कर सके, तो बी भी उस प्लैंक को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ए उसको लात मार देता है जिसकी वजह से बी की डूब के मौत हो जाती है। सर फिट्ज़जेम्स स्टीफेंस का कहना है कि ये क्राइम नहीं होगा, पर आर्चबोल्ड कहते हैं कि ये अब लॉ नहीं है, क्योंकि स्टीफेंस की रीजनिंग ये थी क्योंकि ए ने तो अपनी जान बचाने के लिए किया है और अगर वो डायरेक्ट बॉडीली हार्म करता है तो इट इज़ कवर्ड अंडर 81, पर आर्चबोल्ड सेड नो दैट इज़ नॉट द करेक्ट लॉ। और डडली क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने और इवन इंडिया ने ही जो आर्चबोल्ड का जो रीजनिंग है उससे एग्री किया है। आर वर्सेस मार्टिन में भी यही पोजीशन
हेल्ड हुई थी। आर वर्सेस मार्टिन में क्या होता है, डिफेंडेंट वॉज चार्ज्ड विद ड्राइविंग whilst disqualified and sought to raise necessity as a defense, but trial judge ruled that necessity was no defense to an absolute offense. He then changed his plea to the plea of guilt. Circumstances on which the defendant sought to rely were that his wife's son was late for work and accordingly in danger of losing his job, and that this made his wife so distraught that she threatened to commit suicide unless he drove her son to work. There was medical evidence available indicating that it was likely that his wife would have attempted to suicide had he not driven her son to work. The Court of Appeal quashed the conviction and held the trial judge should have left the defense to jury. तो इसमें क्या हुआ था, आर वर्सेस मार्टिन में जो पॉइंट हुआ था, एक टेक्निकल पॉइंट पे ख्वाश हुआ था। ट्रायल जज ने डडली वर्सेस क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस का रूल ध्यान में रखते हुए यही बोला था कि देखिए, अगर कोई ऑफेंस प्राइमा फेसी दिख रहा है कि आपने पूरा गलत किया है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता नेसेसिटी का। लेकिन ट्रायल जज ने क्या किया था, क्योंकि वहाँ यूके में जूरी होती है, तो उन्होंने क्या किया था कि खुद ही रूल कर लिया था, ट्रायल जज ने जूरी पे नहीं छोड़ा था। ये ऑप्शन अवेलेबल है पर रेयर केसेस में होना चाहिए, इसको जूरी नलिफिकेशन कहते हैं। दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल बोथ इन यूके एंड यूएसए। तो ये जो काम जज ने किया था, इसको कोर्ट ऑफ अपील ने माना नहीं। उसने ये देखा कि देखिए, मेडिकल एविडेंस से आ रहा है कि वाइफ सच में कर लेती, ये नेसेसिटी की ऐसी चीज़ थी, तो ये जो केस है वापस ट्रायल कोर्ट को रिवर्ट हो जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को ये जो डिसीजन है गिल्ट का जूरी पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस केस में भी कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया था कि सेल्फिश एक्ट्स के लिए आप डिफेंस या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं ले सकते। तो जैसे कि अभी मैंने आपको रॉबर वाला एग्जांपल दिया कि देखिए, आर वर्सेस मार्टिन को आप प्राइमरली यूके के कंटेक्स्ट में ध्यान रखिएगा, इंडिया में कोर्ट नहीं करेंगे आप। मैं बस आपको एक पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस आप इंडिया में कोर्ट करेंगे, लोकस क्लासिकस है, ऑलराइट। ये इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की कंडीशन पे बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है। सिमिलरली एक दूसरी कंडीशन भी आती है, देयर इज अ सेकंड कंडीशन ऑल्सो। सेकंड कंडीशन ये है कि जहाँ पे एक आदमी है, वो सोच रहा है कि इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंस अगर मैंने एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया तो मेरे घर वाले मर जाएंगे, और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, क्योंकि वो मान लीजिए गरीबी है, स्टारवेशन है, वो क्या करता है, पड़ोसी के घर पे जाता है, उनके घर में उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को मार देता है और सामान लूट के ले आता है और घर वालों को खिलाता है। ऐसे में वो अगर कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरी फैमिली मर जाती, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस लेता, तो उसे डिफेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ही विल बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर। बट अब एक सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे मान लीजिए, एक बहुत थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप लोग करिएगा कि एक ट्रेन आ रही है, ऑलराइट, उस ट्रेन के ट्रैक पे 16 लोग बंधे हुए हैं एक साइड पे। इट इज़ अ वेरी गुड थॉट एक्सपेरिमेंट, ये साइकोलॉजिकल स्कूल में बहुत होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड वो इज़ अ सोशियोपैथ एंड अ साइकोपैथ। अ साइकोपैथ इस पर बड़ा अच्छा सा डिसीजन ले लेते हैं। तो थॉट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ट्रेन पे 16 लोग बंधे हुए हैं, ऑलराइट, ट्रेन के ट्रैक्स पे 16 लोग बंधे हुए हैं, और ट्रेन आ रही है सीधे उनको वो कुचल देगी, और आप उन 16 लोगों के बीच और ट्रेन के बीच के एकदम बीच के एक ऊपरी ब्रिज पे खड़े हुए हैं, और आपको ट्रेन के पास रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, कि ब्रिज के पास एक आदमी खड़ा हुआ है ट्रैक के ठीक ऊपर। अगर आप उसे ढकेल लेते हैं ब्रिज से तो ट्रैक पे गिरेगा, ट्रेन सिर्फ उसको कुचलेगी और फिर ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो क्या आप ऐसा करोगे? अच्छा, इस थॉट एक्सपेरिमेंट में पाया गया था कि साइकोपैथ्स वर रेडली अवेलेबल टू कमिट सच एन एक्ट, पर जो नॉर्मल पीपल थे उनको हिचकिचाहट हो रही थी कि वो कैसे कर सकते हैं। जबकि अगर थॉट प्रोसेस चलाया जाए तो वो देखेगा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 16 लोग मार दिए जाएंगे।
तो अगर ऐसा मान लीजिए, ऐसा कोर्स ऑफ कंडक्ट, ये तो देखिए थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए है, लीगली नहीं हो, एक थॉट एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा किया जाता है रियलिटी में, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकता है, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई साइकोपैथ ऐसा करता है तो उसे डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है 99.99% ऑफ द टाइम। तो ऐसे में हो सकता है वो गिल्टी ऑफ मर्डर हो जाए प्रैक्टिकली, अगर ये वो नहीं दिखा पाया कि यही मीन्स अवेलेबल था। क्योंकि लॉ में क्या ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैंने एक्ट की, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। जहाँ कोर्ट ने पकड़ा कि आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल था, और अल्टरनेटिव अवेलेबल होने के बाद भी आपने उस अल्टरनेटिव में एक्ट नहीं किया, आपने जानबूझ के वो क्राइम कमिट किया जिससे दूसरे की लाइफ चली गई, देन यू विल बी हेल्ड लायबल, आपको सेक्शन 81 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो थॉट एक्सपेरिमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को लेके ही थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का, ये पता करने के लिए कि साइकोपैथ टेंडेंसी किन किन लोगों में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने थ्योरेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट बताया है आपको। इसको आप सिर्फ एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा, ये आपके एक मेंटल एक्सरसाइज के लिए है, ये इसलिए नहीं है कि जिससे आप इसको कहीं कोट कराएं। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो सेंस ऑफ इमिनेंस दिखाना चाहिए, जैसे कि इलस्ट्रेशन में कि शिप टकराने वाली है दूसरी शिप से या आइसबर्ग से, और अगर राइट मोड़ा तो दूसरी शिप से टकराएगी। इन ऑल सिचुएशंस कम से कम 30 लोग मरेंगे, लेकिन अगर लेफ्ट मोड़ दिया तो सिर्फ 2 लोग मरेंगे। लेफ्ट मोड़ देता है कैप्टन ऑफ द शिप, तो शिप टकराती है बोट से, 2 लोग मर जाते हैं। शिप जो कैप्टन है, कैप्टन लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं लायबल होगा? सेंस ऑफ इमिनेंस था, उसको नॉलेज तो थी कि हार्म होगा, पर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने ये एक्ट की ही क्यों? एक ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए। सो इफ अ पर्सन हैज़ अ चॉइस बिटवीन 2 evils and he is not acting under a criminal intention, he has to choose lesser evil if he has to take the benefit of doctrine of necessity. Another perspective on this is that the doctrine of necessity must not be for selfish purpose. Alright, जैसे कि क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस में हुआ, सेल्फिश रीजंस के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी उस रॉबर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया, भले ही वो जो उसकी बात है आप एक कुछ हद तक उससे अग्री कर पाएँ कि अगर वो ना खाता तो वो मर जाता, पर ये उसको जस्टिफिकेशन नहीं देता वो दूसरे के घर में जाके रॉबरी कर ले, उसकी जान ले ले। उसका कन्विक्शन तो होगा, और कन्विक्शन बिल्कुल होगा। हाँ, वो अलग बात है सेंटेंस कम हो जाए, पर कन्विक्शन होगा। लॉ कन्विक्ट 100% करेगा। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करेंगी और इनका पैरामीटर्स वर्किंग का कैसा है। सेंस ऑफ इमिनेंस 81 में, सेंस ऑफ इमिनेंस इज नेसेसरी, criminal intent should be lacking, although the knowledge may be present. Criminal intent should be lacking. Third is that the act must have been done in order to avoid a greater harm. All right. तो ये सारी चीज़ों का आपको प्राइमरली ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ द एंटायर स्कोप ऑफ सेक्शन 81। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसके लिए अगर आपको एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर एक केस लॉ आपको याद करना हो सेक्शन 81 का, तो क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस बताइएगा। और एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आपको सिर्फ बेयर एक्ट के लेवल पे आंसर करना है सेक्शन 81 को। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया वो आप बता दीजिएगा, और इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद आप बस अपने, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन बनाया वो इलस्ट्रेशन आप बता सकते हैं, या आप इलस्ट्रेशन अपने मन के भी बना सकते हैं, बशर्ते वो पैरामीटर्स जो ले डाउन हुए हैं सेक्शन में उसी के अंडर फॉल करें, उसके बाहर ना फॉल करें, एंड यू विल बी अवॉर्डेड वेरी जनरस मार्क्स। ठीक है। और अभी जो मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स की पोजीशन बताई है और यूके की जो पोजीशन बताई है वो आपके नॉलेज के लिए है, वो उसके लिए नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में कोट करना होगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन जो यूके के लॉ की पोजीशन है डडली एंड स्टीफेंस वाली और लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क वर्सेस विलियम्स वाली, इंडिया में भी फॉलो होती है, क्योंकि जो आईपीसी है वो प्राइमरली ब्रिटिश लॉ पे बेस्ड है, और ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड होने की वजह से वो वही रूल्स इनकॉर्पोरेट करता है जो वहाँ पे चल रहे थे। ऑलराइट, तो इसलिए यूके के केसेस काफ़ी रेफ़र किए जाते हैं, बट यू डोंट नीड टू कोट देम इन एग्ज़ाम।
एग्जाम में आप क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस कोट करिएगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर केस जिसको एग्जामिनर विल प्रोबेबली लुक फॉर। आप धनिया दाजी वर्सेस एम्परर भी कोट कर सकते हैं, जिसमें अक्यूज ने एक ताड़ी ब्रू में जहर मिला दिया था। ऑलराइट, उसने सेक्शन 81 का डिफेंस लिया था, पर उसकी जो डिफेंस की प्ली थी वो डिनाई कर दी थी प्राइवी काउंसिल ने। सो दैट वाज इट फॉर सेक्शन 81। टुमारो विल स्टार्ट विद डोलिन का पैक्स एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो ख़त्म करेंगे। देन विल स्लोली कम टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऑलराइट, जनरल एक्सेप्शंस बाय नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।